Good morning, sir. Good morning, all of you. Yeah, so we are doing this. Have you all done this question? This was question number 3. Yes, sir. Done. Yes, Okay. sir, done. Okay. तो मेरा नेक्स्ट पीरियड कंबाइंड है आपके साथ, तीनों के तीनों सेक्शन साथ में. दिस वन इज ओनली इन योर क्लास. तो इसमें अभी हम वो कर लें. लेट अस डू परसेंटेज इन दिस पीरियड. Yes, sir. Yes. Yes, sir. So question number 21, a property dealer charges commission at the rate of 2% on the first 2 lakh, 1% on the next 2 lakh and 0.5% on the remaining price. And the commission on the property that has been sold for rupees 5,40,000. Okay. Explain. Question number 21. तो रुपीज 5,40,000 को इन्होंने 3 पार्ट्स में ब्रेक करा है. ठीक है. द फर्स्ट पार्ट, सपोज रुपीज 5,40,000 है. कमीशन आप लोग जानते हैं. कमीशन मैंने उस दिन भी बताया था. कमीशन क्या होता है कि if someone is providing some service, so he will take some amount from you as a commission for his services. ठीक है. तो प्रॉपर्टी डीलर्स क्या करते हैं, दे प्रोवाइड यू द सर्विस, दे फाइंड द प्रॉपर्टी फॉर यू. और उस प्रॉपर्टी को जब आप परचेज करते हैं, सो दे आस्क सम मनी फॉर देयर सर्विसेज. ठीक है. तो इसको बोलते हैं कमीशन. तो यहाँ पर कमीशन किस हिसाब से दिया गया है, 5,40,000 में से अगर स्टार्टिंग के जो 2 लाख रुपीज है, रुपीज 2 लाख जो है स्टार्टिंग के, इस पे कमीशन है 2%. We are on which question? क्वेश्चन नंबर 21. इस पर कमीशन है 2% का. ठीक है. नेक्स्ट 2 लाख रुपीज पर कमीशन कितना है, next 2 lakh rupees per commission is 1%. And finally the remaining amount, what is the remaining amount now? Starting के 2 lakh और उसके बाद 2 lakh, 2 lakh plus 2 lakh कितने हो गए, 4 lakh हो गए. तो 5 Sir, lakh 50 lakh. 5,40,000 में से 4 lakh हटा दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो कितना बचा, 1,40,000. तो रिमेनिंग 1,40,000 पर कमीशन कितना है, 0.5% है. आपको टोटल कमीशन फाइंड करना है कितना होगा. ठीक है. तो first you find out the commission on rupees 2 lakh. Sir, 5 we have minus the 4 lakh with the 54 lakh. हाँ जी. 5,40,000 minus 4 lakh is equals to 1,40,000. Sir, why it is? अभी बताता हूँ बेटा. First you note down, then I will explain. Just wait. Two percent of 2 lakh.
4,000 rupees. ₹700. Total commission कितना हो गया? First you all note down, then I will explain you. Okay, sir. Note down in your copy. Rupees 6,700 is the total commission. Seven, these students are also sitting here. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Whose period is it in your class? Yes, sir.
किसका पीरियड बेटा आपकी क्लास में? Yes, sir. फोर्थ पीरियड आपका है और ये वाला ऋतिजा मैम का है। तो why Sir, is Ravindra ma'am. Note it down. Sir, Ravindra ma'am. Ravindra ma'am. रविंदर मैम का है? So you आप will so you will also take third period. No sir, this is Ritija ma'am's period in class 7th है। नहीं, No, seventh sir, day this is your period. Sir, in B, Ravindra ma'am seventh day period. it is my period. Seventh day नहीं मेरा है. Seventh B it was Ravinder ma'am's period. Yes, sir. Okay, so she is not there, so it is an arrangement. Yes. Sir, and there, Ravindra ma'am period in sign B. In both the classes we are doing the same thing. Question 21% का we हमें करना है. We are doing that question. Yes. Okay, so I will Sir, explain. you will also take third period. Yes, third period also I will be taking. In that we will be doing simple interest in the third period. Okay. Sir, in the fourth period also we will do simple interest. Fourth period is not maths. It will be taken by Riti ma'am. Hindi. Okay sir. And the next period you will take. नहीं, on this one and the next one. First, second, third. 3 period हो गया आपके लगातार maths. Okay. So first of all क्या है question में? Question is that someone purchased the property of rupees 5,40,000. Rupees 5,40,000 की property purchase करी. Now the property dealer ने एक उसके साथ deal करी है. जो बंदा है जिसने property खरीदी है, क्या deal करी है कि भाई रुपीज 2 लाख स्टार्टिंग के जो रुपीज 2 लाख 5,40,000 को 3 पार्ट में ब्रेक कर दिया उसने. स्टार्टिंग के 2 लाख रुपीज, बीच वाले 2 लाख रुपीज एंड लास्ट में कितने बचे 1,40,000. इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 2 लाख प्लस 2 लाख प्लस 1,40,000 कितना आया? 5,40,000 आ गया. तो ये 3 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया. अब जो प्रॉपर्टी डीलर है उसने उससे बोला, अपने कस्टमर से बोला कि स्टार्टिंग के जो रुपीज 2 लाख है उस पे मैं आपसे 2% कमीशन लूंगा. आई विल टेक 2% कमीशन फॉर द स्टार्टिंग 2 लाख. फॉर द नेक्स्ट 2 लाख रुपीज आई विल टेक कमीशन एट द रेट ऑफ at 1%. Okay. And for the last 1,40,000 rupees, I will take commission at at 0.5%. Okay, इस रेट से मैं लूंगा. Now commission on first 2 lakh rupees, यहाँ पे first लिख लेना, मैं भूल गया हूँ लिखना. Commission on first rupees 2 lakh. ठीक है, on first. तो starting के 2 lakh rupees जो है उस पे commission कैलकुलेट कर लीजिए. 2% of 2 lakh. 2% of 2 lakh कितना आ गया? 4,000. बहुत इजी क्वेश्चन है. कमीशन ऑन द नेक्स्ट 2 लाख, सेकंड 2 लाख रुपीस जो है उस पे क्या रेट है? कमीशन का 1% है. तो 1% ऑफ 2 लाख ये कितना आ गया? रुपीस 2,000. एंड देन फाइनली कमीशन ऑन द लास्ट 1,40,000 रुपीस जो बचे हुए हैं उसका कमीशन क्या किस रेट से है? 0.5%. तो 0.5% ऑफ 1,40,000 कैलकुलेट करके कितना मिल गया? रुपीस 700. तो एड ऑल दीज 4,000 प्लस 2,000 प्लस 700 कितना आ गया टोटल कमीशन? रुपीस 6,700. बस इतना करना था. इज इट क्लियर नाउ ऑल ऑफ यू? दिस इज आई थिंक इट इज रिकॉर्ड ब्रेकिंग. Yes, sir. 28 students from section 7A and 7B. ये तो कुछ रिकॉर्ड ब्रेकिंग सा लग रहा है. तो कल प्रीटीएम इफेक्ट तो नहीं है? सर आज रिकॉर्ड टोरिंग डे है. हाँ, रिकॉर्ड टूटने वाला डे है. ये कुछ पीटीएम इफेक्ट लग रहा है. पीटीएम इफेक्ट है ये.
Aditya Tiwari is sitting here. Aditya Tiwari, are you there? Aditya beta, are you sitting? He is not here. ये आदित्य नाम के दो बच्चे हैं, एक तो आदित्य सक्सेना है. आदित्य सक्सेना, you are from which section? Beta, your voice is not clear. Are you from A or B? B. B section. Aditya Tiwari, are you there? He is from A. He's from A, but उसको पता नहीं, he's not replying. चलिए, have you all understood the question? Let's move on to the next one. 29 हो गए, बताइए. ये मुझे पीटीएम इफेक्ट लग रहा है, ये इतने सारे बच्चे अटेंड कर रहे हैं मीटिंग, ये सब 30 हो गए. हाँ. रणशेर गिल, आर यू लिसनिंग? हाँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी रणशेर. आर यू राइटिंग द क्वेश्चंस इन योर कॉपीज? Yes, sir. Sir, one second. तबीयत सही नहीं है क्या? हाँ, so are you noting down in your copy? Ranjit? Yes, sir. Okay, beta, I will see your copy after 2-3 days. Okay, and then on next Monday मैं पूरी copy आपकी देखूंगा, check करूंगा. Okay, your work Okay, is sir. Okay, sir. complete your work. There was a complaint from your mother, so ऐसा ना हो अगली बार. I hope you will do. You are a good child. I know this. So I hope दोबारा ऐसी complaint मम्मी को ना करनी पड़े. Okay. Complete your work in time. And maths में तो if you are not writing sir. in your copy, that means you will not learn anything if you are not writing in your copy. Okay, so do this. सर देखिए 2 मिनट में तीनों बच्चों ने लेफ्ट कर दिया, 3 ने. आ जाएंगे, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई बेचारे. Okay, so question number 22. Nikhil's income is 20% less than that of Akhil. How much percent is Akhil's income more than that of Nikhil? 24%. Question number 22. Nikhil's income is 20% less than that of Akhil. So let Akhil's income be ₹1000 मान लेते हैं. अखिल की इनकम, निखिल की इनकम उससे 20% लेस है. Let Akhil's income be ₹1000. You can assume anything, 1000, 10,000, 100, x भी मान सकते हैं. So let Akhil's income be ₹1000. So Nikhil's income क्या होगी? Nikhil's income is equal to 20% less than that of Akhil. Akhil की income में से 20% minus कर लेंगे. So 1000 minus 20% of 1000. Are you getting my point?
निखिल की इनकम उससे 20% कम है। देख लीजिए फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा है निखिल्स इनकम इज 20% लेस देन दैट ऑफ अखिल। अखिल की इनकम में से 20% माइनस करना है आपको। तो 1000 माइनस कितना आ गया 20 into 10 200 हो गया। दैट मीन्स निखिल्स इनकम इज ₹800। ये है निखिल Sir, की। multiplied by 1000. सॉरी क्या वो बेटा? Sir, why we have multiplied 20% multiplied by 1000? बेटा जब भी किसी चीज में वैल्यू में डिक्रीज करते हैं तो उसमें जब माइनस करते हैं तो इसी तरीके से जब मैंने स्टार्टिंग कराई थी चैप्टर की तो मैंने आपको सिखाया था ये। सपोज यू गो टू अ शॉप एंड यू सी अ प्रोडक्ट ₹2000 का प्रोडक्ट है मान लो, एग्जांपल दे रहा हूं। अब उसमें ये कह रहे हैं आपसे कि 40% का डिस्काउंट चल रहा है। ₹2000 में 40% का डिस्काउंट है, सेल चल रही है, 40% की सेल है। Okay, तो sir. आप प्रोडक्ट का प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2000 माइनस 40%. 40% ऑफ 2000 माइनस करेंगे। ये तरीका होता है कैलकुलेट करने का Okay, sir. परसेंट। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे करा है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाया था। परसेंटेज में ऐसे माइनस करते हैं, किसी चीज को पर्टिकुलर परसेंटेज से डिक्रीज करना। तो व्हाटएवर percentage you have to decrease it like this, x minus 40% of x, whatever the value is, उसमें ऐसे करके माइनस करते हैं। ओके Okay, sir. so this is Nikhil's income. Now what is the difference between the incomes of the two? अखिल की इनकम 1000 है, निखिल की इनकम 800 है। what is the difference between the income? Difference is ₹1000 minus 800। कितना आ गया? ₹200 का डिफरेंस है। Am I right? अब आपको निकालना है कि अखिल की इनकम निखिल से कितने परसेंट ज्यादा है, परसेंटेज में फाइंड करनी है। सो द परसेंटेज by which Akhil's income is more than Nikhil percentage by which Akhil's income is more than Nikhil is equal to the difference in the income. What is the difference in the income? 200 is the difference upon 800 into 100। आ रही है बात समझ में आपको? Sir, 200 why upon Yes, sir. 200 अपॉन 800 अपॉन 800 क्यों करा ये मैंने? क्योंकि मैं किसके रेस्पेक्ट में कंपेयर कर रहा हूँ? अखिल की इनकम को किससे कंपेयर कर रहा हूँ? निखिल की इनकम से कंपेयर कर रहे हैं। अखिल की इनकम को किसकी इनकम से कंपेयर कर रहे हैं? निखिल की इनकम से। तो डिनोमिनेटर में किसकी इनकम लिखेंगे आप? निखिल की इनकम लिखेंगे। व्हाट इज निखिल्स इनकम? Sir. तो जिसकी इनकम से कंपेयर करते हैं उसी की इनकम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. ओके तो इसको Sir, WhatsApp पे sir. जी बताइए। Sir, WhatsApp पे 3 स्टूडेंट्स ने सर अपनी अटेंडेंस डाली है, बट सर वो यहाँ पे नहीं है। अच्छा बेटा अभी देखते हैं, मैं उनको कोई बात नहीं, घर पे कॉल कर दूंगा। 25%। sir, why we have taken 200 as the numerator? Because you in the numerator you write the difference of the income। आपको ये भी स्टार्टिंग में लिखाया गया था, किसी चीज की परसेंटेज निकालते हैं
तो डिफरेंस क्या है दोनों की इनकम का? 200 रुपीज है, तो दैट इज व्हाई डिफरेंस न्यूमरेटर में लिखेंगे, डिनोमिनेटर में उसकी इनकम लिखेंगे जिससे कंपेयर कर रहे हैं। हम अखिल की इनकम को किससे कंपेयर कर रहे हैं? निखिल की इनकम से कंपेयर कर रहे हैं, सो डिनोमिनेटर में निखिल की इनकम आएगी। सर ग्रुप पे सर साधना मैम मैसेज कर रही है कि मीटिंग ज्वाइन करो, बट सर ये पीरियड और अगला पीरियड तो आपका है। I don't know, maybe some confusion, गलती से मैम ने कर दिया होगा। Which section? ए मैम ने कुछ गलती से कर दिया होगा। सर ये अर्श राना बाकी सारे बच्चे उधर ही भाग गए। Fazil, I am in the meeting. The message are coming to the notification bar and I am sending to there only. सॉरी। Ma'am has deleted the message. She posted it by mistake. Okay. Don't worry. And Ashrana मैम कह रहे हैं मैम Ashrana प्रेजेंट लगा रही हैं। तो यही तो कह रहा था मैं। Okay. Question number 23. How much time is left? अभी है टाइम 8 मिनट्स में 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। Question 23 is John's income is 20%. अरे बिल्कुल सेम है। 23 is your homework. Try 23 in your homework. It is exactly same as question number 22. Okay, sir. Try करिएगा। Try करना नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा। Question number 24 पे आ जाओ। The value of a machine depreciates 10% every year. If its value is 3,87,000, what was its value 1 year ago? Okay. Let me explain the question. एक मशीन है जिसकी वैल्यू हर साल 10% कम हो जाती है। कोई भी चीज आप लेंगे, मोस्टली तो ऐसा ही होता है कि आपके पास अगर वो चीज पड़ी हुई है तो मतलब आपने परचेज करी तो आने वाले टाइम में उसकी वैल्यू कम हो जाती है। अगर आप उसको रीसेल करेंगे, फॉर एग्जांपल इफ यू परचेज अ कार, तो वो कार आपने मान लीजिए 6 लाख की खरीदी, तो अगले साल आप उसको सेल करेंगे तो 6 लाख की तो नहीं बिकेगी, उससे कुछ कम की बिकेगी। चैप्टर परसेंटेज का कम कॉमर्स का ज्यादा लग रहा है। जी 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 जी। Sir, So, which question? 24. 24. 24. And 20. And So, 23 is what? let the value of the machine be x. यहाँ पर एक मशीन है, कार की जगह एक मशीन है। कार मशीन की वैल्यू हर साल 10% डिक्रीज हो जाती है। डेप्रिशिएट मतलब डिक्रीज होना। Let the value, मैं समझाता हूँ क्या कह रहे हैं यहाँ पर, of the machine one year ago be x. x मान लेते हैं, मशीन की वैल्यू x थी 1 साल पहले। अब ये कह रहे हैं
10% डिक्रीज होने के बाद प्रेजेंटली जो वैल्यू है, द करंट वैल्यू ऑफ मशीन इज 3,87,000। तो पुरानी वैल्यू में 10% का डिक्रीज हुआ होगा, तब आज की वैल्यू आई होगी। पिछले साल मशीन महंगी थी, एम आई राइट और नॉट? लास्ट ईयर मशीन की वैल्यू ज्यादा थी, 10% डिक्रीज हो गई। प्रेजेंटली द वैल्यू ऑफ द मशीन इज 3,87,000। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं कैसे मिलेगी, इक्वेशन क्या होगी। लास्ट ईयर की वैल्यू में 10% डिक्रीज कर लीजिए, x माइनस 10% ऑफ x, am I right or not? लास्ट ईयर की वैल्यू में से 10% माइनस कर लेंगे, then you get the value, current value of machine, which is 3,87,000. Have you all understood the equation? मशीन की पुरानी वैल्यू x है, पिछले साल वाली, उसमें 10% का डिक्रीज हो गया और हमें आज वाली वैल्यू, जो प्रेजेंट वैल्यू है मशीन की, वो मिल गई। कितनी है? 3,87,000। इक्वेशन इज क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. x minus 10 upon 100 into x is equal to 3,87,000. So this becomes 100x minus 10x whole upon 100 is equal to 3,87,000. So 100x minus 10x is 90x on 100 is equal to 3,87,000. X is equal to 387,000 into 100 upon 90. 387 को 9 से डिवाइड कर लो, so what do you get? You get rupees 38 4 times and 27 times 4,300,000. That means 4,37,000. लास्ट ईयर मशीन की वैल्यू क्या थी? 4,37,000 थी। Is it clear, all of you? Sir, but you have written 4,30,000. हाँ, 4,30,000 है आंसर। 4,30,000 थी लास्ट ईयर वैल्यू। 4,30,000 तो लिखा है, क्या हुआ? मार्कर लाइट तो नहीं है, सही दिख रहा है? Yes, sir. सही दिख रहा है. Clear? So if the equation is clear, the rest of the part is very simple. Just solve the equation and you get your answer, 4,30,000 rupees. Okay, sir. Bye, sir. अरे बाय कहाँ, भी 2 मिनट बचे हैं। बाय क्यों कर रहे हो भाई? सर अभी तो एक और पीरियड बचा है आपका. हाँ जी, उसमें भी पढ़ना है। सर उसके बाद बाय बोलेंगे. अभी बोलेंगे सी यू सून. सर अब 1 मिनट बचा है. सर डन. Sir, done. सर डन.